का पेट खराब हो जाता है। What is this? तो ये तो मेन वॉल्यूशन है। अगर टीचर्स है तो कहीं टीचर्स सकता है, काम कर सकता है जॉब और टाइम के लिए। तो फिर क्या हो जाता है? एज ए रिजल्ट वो अफोर्ड कॉलिंग टीचर्स ज्वाइनिंग है तो ट्रेनर नहीं है। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ है? ये तो कॉम्प्रोमाइज होता है यहाँ पे। अगर हम बच्चों को ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनके लिए टीचर्स को हायर करते हैं तो किए हमने तो वो लेस सैलरी पे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे फिर से कॉम्प्रोमाइज होता है। अगर हम बोलते हैं सेक्शन 17 पे आ जाए पढ़ने के लिए वो एक्स्ट्रा क्लासेस एक्स्ट्रा फीस दे दे, तो क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है? तो क्या इससे कुछ कर पाता है? क्या इसमें कुछ बन जाती है? ये मत बोलिए छूट जाती है। Today I, Fakrunissa, from 11th Humanities, I stand before you to speak on a topic that is not just a topic, but is also urgent. The right to education and preventions of exploitation. Let us all remember that the education is not a privilege. It is the fundamental right. It is the key that opens the door of opportunities, dignities, and equalities. Together, let us create a future. Together, let's create a future. Where every child holds a pen. Where every child holds a pen. Not a tool. Not a tool. A book. A book. Not a burden. Not a burden. And a dream. A dream. Not despair. Not despair. Thank you. Have a nice day. I don't know, I have not done the cross-checking of that. So people are saying that we have more dropouts now than before. So we are fortunate to have with us administrators from different departments. We have with us Tahsildar Pampur Asif Malik Sahab. जैसे आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, इससे पहले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए थे. दे हैव ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड दिस टॉपिक. मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ. बीइंग द तहसीलदार ऑफ दिस एरिया, मैं आपके साथ कुछ लाइव इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. पहले मैं आप बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आर वी रियली एजुकेटेड? जो बच्चे यहाँ पे हैं, अगर आप अपने घरों में देखेंगे, जो आपके बड़े भाई बहने हैं, छोटे बच्चे हैं, तो जहां पे भी आप नजर मारोगे, एवरी वन ऑफ अस वी आर एजुकेटेड. लाइक हर किसी ने दे आर +2, दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर लॉ स्टूडेंट्स, उन्होंने LLB किया है, दे आर MBBS स्टूडेंट्स, दे आर एजुकेटेड है कि नहीं है? तो मुझे जहां तक लगता है, बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और जो मैं दिन ब दिन यहाँ पे देखता जा रहा हूँ, there is a need of ethical education and moral education. Teachers and my students, I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today here we all have gathered for a very crucial topic, that is education. We have a huge gathering here today. We are talking about education. But what about the people who don't even have a concept of education? Who are from the conservative families, who don't have support, who don't have anything, so they could also know about what is our right. As a person, if we talk about education, it's not a privilege. Education is not a privilege. It's a right of a student. A student have a right to education, to dream and to live his life. जाता है, जिनसे काम करवाया जाता है, and they are okay with it. Surprised me that I am sitting in a government school. Today I am here. I want to bring your attention on a very important issue which our Tahsildar Sahab already deliberated upon. That is usage of mobile phones. It touches both the education part as well as the exploitation part. These two terms, the term education and exploitation, these two terms are the focus of this awareness program today. I am talking about usage of mobile phones as modern tools of education. However, as a judge, I have come across many cases where children have fallen into trap of exploiters who pretend to be your online friends. Mobile phones, if used in right manner, can become most effective tools of knowledge. They can become your greatest teachers. However, if the same tool is misused, it can lead to your downfall, from which the comeback is extremely hard. It is extremely difficult. And authorities of the school and Uzma ji for calling me here. इससे मैं एक तो
मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एंड सेकेंडली मुझे अपना चाइल्डहुड अपना स्कूल टाइम याद आ गया। थैंक यू। मैं थोड़ी सी बातें जो शायद वैसे बच्चों ने बहुत सारी बातें की, थोड़ा सा अगर कुछ रह गया तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। देखिए, ये राइट टू एजुकेशन आया कहाँ से? आपको शायद याद होगा पिछली बार हम आए थे यहाँ, हमने वो आपको एक कहानी सुनाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज की क्या रिलेशन है। तो सब कुछ जो है पहले आईन में आता है और फिर उस चीज को उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए क्या बनते हैं? बाकी लॉज बनते हैं। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो आर्टिकल 21A पहले ये नहीं था, इसमें जो है अडॉप्ट किया गया। और 21A जो आर्टिकल है ये स्टेट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आप जो है स्टेट में फ्री एजुकेशन दो 6 साल से 14 साल के बच्चों। शबीर अहमद खान साहब, शबीर अहमद मलिक साहब, एनसीसी विजिट पुलवामा। Now I request our next speaker, chief guest and Asif sahab to present moment over. Mariam Sharif. Please welcome Advocate Amni. Please welcome Ruhi Jan PLD. समीर अहमद तेली। समीर तेली। Idris Khan, Arif Ahmed Bhatt, DSM Del Monte. Time it again to our program. And sponsor Jahan Baba. देखिए, ये दो चीज़ें, राइट टू एजुकेशन और प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं जो इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं ह्यूमन राइट्स के हिसाब से। अगर हम उसके ज़ाविये से देखेंगे तो, क्योंकि राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है और एक ह्यूमन राइट भी है, और प्रिवेंशन अगेंस्ट चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन ये भी एक फंडामेंटल राइट भी है और ह्यूमन राइट भी है। तो दोनों चीज़ें इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं और तब तक हम इस एक्सप्लॉयटेशन से निजात नहीं पा सकेंगे जब तक कि हम एजुकेट ना हो। तो इसलिए एजुकेशन सबसे पहला आता है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ डिग्रियां करनी है और आगे बढ़ना है। एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल एजुकेशन, ओवरऑल नॉलेज जो हमें चिल्ड्रन को देनी है, तो ताकि वो अपनी जो हमारी सोसाइटी है आगे जाके वो अच्छे इंसान बने। इसी पर्पज़ के लिए आज ये हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था तहसील लीगल सर्विस कमेटी की जानिब से। यहाँ पे स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पांपोर, और इसके स्पॉन्सर्स हैं ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था। और इसमें हमने बच्चों को, ऑल्दो दे आर ऑलरेडी वेरी हैविंग गुड नॉलेज अबाउट दिस, लेकिन फिर भी हमने ये महसूस किया कि हमने अपनी जो अपना नुक्ते नज़र है या अपनी मैसेज है वो उन तक पहुंचाना है, ताकि जाके बच्चे आगे जाके वो मैसेज पहुंचाए। जो ये हमारे समाज में ये जो बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशंस होती हैं, चाहे ड्रग अब्यूज़ हो, चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ हो, इसके लिए हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था।